बलिवेदी की ओर मिलजुल कर आते हैं हम, गाते हैं तेरी सरगम, पाए आगे तेरे शुभ धाम। बलिवेदी की ओर मिलजुल कर आते हैं हम, गाते हैं तेरी सरगम, पाए आगे तेरे शुभ धाम। तोहफे में संग ही लाए है जिंदगी, होठों पे है तेरी आराधना, आराधना बस तेरी आराधना। Your Excellency, Bishop Matthew Nelligunel CST, Reverend Father Polly, Vicar General, Reverend Father Sabu, Provincial Superior, Reverend Fathers, Sisters, and my dear friends. With immense joy and heartfelt gratitude, I warmly welcome you all to this solemn and grace-filled Eucharistic celebration on the blessed and historic occasion of the elevation of St. Basil's Church to the dignity of a canonical parish. Today is truly a moment of thanksgiving and joy for all of us, as we witness a significant milestone in the life and journey of our faith. This sacred occasion marks a deeper call to grow as a vibrant community rooted in faith, communion, and service. First and foremost, it is my great privilege to extend a most respectful and cordial welcome to Your Excellency, Bishop Matthew Nelligunel CST. Your gracious presence among us today is a blessing for us all. We are deeply honored by your fatherly care, pastoral leadership, and your willingness to officially declare St. Basil's Church as a parish through this solemn celebration. In the name of this faithful community, we welcome you, dear Pidaji. I extend a warm welcome to Very Reverend Father Polly Payyapalli, the Vicar General of our diocese. Your constant guidance, encouragement, and support have accompanied us throughout this journey, and we are grateful for your esteemed presence among us today. Hearty welcome, dear Father. The constant support and encouragement of Reverend Father Sabu, our Provincial Superior, always help us to grow as a vibrant and active, faithful community. As I thank you, dear Father, for your prayers, support, and continued concern for the growth of this mission, I wholeheartedly welcome you to this solemn celebration. A special welcome to Reverend Father Augustine Tharapath, though he is absent today, Reverend Father Biju Pulindanam, Reverend Father Shindo, Reverend Father Albin, who are the priests in charges of Haraya, Parashurambur, Kalvari, and Walterganj, respectively, which come under this newly erected parish. A loving welcome to all the Reverend Fathers and Sisters who have come from neighboring mission stations and parishes.
Your presence manifests the unity and fraternity among us, and we are blessed to have you with us on this joyful occasion. I warmly welcome all the faithful gathered here from various mission stations and communities. Your prayerful presence adds beauty and meaning to this Eucharistic celebration. Hearty welcome to you. A special word of appreciation and welcome to our Basti community, especially those who have worked tirelessly in preparing for this celebration through decoration, hospitality, food arrangements, choir, and various other services. Your dedication reflects the living spirit of faith and commitment in this community. Dear friends, as St. Basil Church begins this new chapter as a parish, may this community continue to grow in faith, unity, and missionary zeal, becoming a beacon of Christ's love to all. As sacred scripture reminds us, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Psalms 127:1. May the Lord bless this parish abundantly and guide us always in His grace. Once again, I welcome you all wholeheartedly. थैंक यू फादर। मैं आप सबके सामने पैरिश इरेक्शन डिक्री पढ़ के सुनाना चाहूँगा। पैरिश इरेक्शन डिक्री, सेंट बेसिल सीरो मलबार पैरिश, बस्ती. The Syro-Malabar Eparchy of Gorakhpur, established in 1984 with the 3 civil districts, was later extended to 7 districts. Then, on 28th August 2025, the Synod of Syro-Malabar Bishops added 29 more districts of Uttar Pradesh to the existing Gorakhpur Eparchy. The extension of the territories is intended towards evangelization and taking care of the pastoral needs of Syro-Malabar Catholics in the diocese. After due consultation at various canonical forums of the eparchy and having made necessary enquiries about the need of erecting a Syro-Malabar parish in Basti area, it has been decided that St. Basil's mission shall be erected as a Syro-Malabar parish. Therefore, in virtue of CCEO Canon 280 1 and 2, as the Bishop of the Eparchy of Gorakhpur, I hereby decree and declare that St. Basil Syro-Malabar parish is erected to the juridical status of parish in the Eparchy of Gorakhpur on 19th March 2026 on the feast of Saint Joseph, the patron of the eparchy. This parish will enjoy all the rights and obligations and privileges of the canonical parishes envisaged by the Code of Canons of the Eastern Churches, Code of the particular law of the Syro-Malabar Church, and the eparchial statutes of the Eparchy of Gorakhpur. All the Syro-Malabar Catholics residing in the mission stations at Basti, Kalwari, Haraya, Walterganj, and Parashurampur, or work in the various institutions of the area, shall be members of St. Basil's Syro-Malabar Parish, Basti. They are exhorted to receive the pastoral care from this parish, and in return, the parish is to reach out to all the Syro-Malabar faithful in its territorial jurisdiction. I earnestly request the people of God of Syro-Malabar Church residing in Basti to join hands with the parish priest to work towards the spiritual as well as physical well-being of everyone. I impart the blessings of God on the parish priest
and the people of God of St. Basil's Syro Malabar Parish, Basti, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, given at Eparchal Curia, Gorakhpur, under my sign and seal on 19th March 2026. Matthew Nellikunel, CST, Bishop of Gorakhpur. Catholic Diocese of Gorakhpur, Bishop's House, Civil Lines, Gorakhpur, from Bishop Matthew Nellikunel, CST, to Reverend Father Saji Paul, CST, Basil Bhavan, Basti. Dear Reverend Father Saji, I am happy to inform you that you are hereby appointed the parish priest of St. Basil's Syro Malabar Church, Basti. Little Flower Syro Malabar Parish has been erected with the intention to cater to the pastoral needs of the Syro Malabar Catholics spread in the mission stations of Kalvari, Haraya, Walterganj, Parashurambur, and Basti. You are exhorted to organize various spiritual exercises for these Catholics in Syro Malabar Rite and exhort all of them to participate in them. You shall carefully maintain all the canonical documents, registers of the Syro Malabar Catholics of all the above said mission stations in the parish office. You shall also organize various pious associations like Syro Malabar Youth Movement, CML, Madhruvedi, Pidhruvedi, etc. in the parish according to the Syro Malabar traditions in order to make the Catholic living lively and meaningful. You shall also organize catechism for the children and liturgical training for the faithful according to the canon 295(1) and 2 of CCEO. You shall form trustees of the parish and according to the canons 202 and 204 and 409(1) parish council shall be formed. You shall assume the responsibility of this new assignment on 30th April 2026. You shall be aware of the sacred responsibility to proclaim good news not only in word but through the witness of your life, a life rooted in prayer, marked by simplicity, filled with love for the poor, and dedicated through tireless service. I wish all the best and God's abundant blessings upon you and your new ministry. Yours sincerely in Christ, Bishop Matthew Nellikunel, CST, Bishop of Gorakhpur. आइए हम एक साथ इस मिस्सा बलिदान में भाग लें और हमारे नया स्थापित कलीसिया सेंट बेसिल्स चर्च बस्ती के लिए और इसके अंतर्गत जो स्टेशंस आते हैं सारे स्टेशन के हमारे विश्वासगण के लिए प्रार्थना कर इस बलिदान में भाग लें। अतः हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महान करे संपन्न ईश कृपा से प्रभु मसीह की आज्ञा से।
आज्ञा है मसीह की, वेला में उस पास्का की। आज्ञा है मसीह की, वेला में उस पास्का की। प्यारी न्यारी है मिसा उसकी जिसने धोए पर। प्यारी न्यारी है मिसा उसकी जिसने धोए पर। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। स्वर्गीक पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समो, पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा, वैसे पृथ्वी पर होवे। आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से
वैसे हमें दे पाप क्षमा, हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा राज होवे निरंतर तेरे संग, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। स्वर्गीय पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। पेज नंबर 188, 188। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरुत्थान द्वारा मानव जाति को आनंद और आशा प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। हे प्रभु, पापियों को पवित्र करने वाले, प्रायश्चित बलि अर्पित करने और तेरे पुत्र के पुनरुत्थान की निरंतर घोषणा करने में हमें सशक्त बना। हे सबके प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वथा। आमीन। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। हर पल कीर्तन गाता रहो मैं, धन्य कहे यह जीवन सारा। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे, प्रभु जी तेरी जय बोलो मैं। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। जिसने सिरजा स्वर्ग गरा, जीव जंत और सागर सारा। इस प्रभु को जो शरणागत, याकूब की जो है ताकत। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा लोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। समस्त अनुग्रहों और भलाइयों से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। हे सबके प्रभु और सृजनहार
सर्वदा। आमीन। पेज नंबर 480। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। ईसा मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार, तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। ईसा मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं, जयगान गाते हैं। करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रति उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संपन्न हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तुझे स्तुति, आराधना और निरंतर धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ऊंचे सुर से गाएंगे हम जीवंत प्रभु का महिमा गान। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन नमः। हम पर दया कर, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू संतों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ से वाचन। प्रभुवर आपका आशीर्वाद। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। याकूब का स्वप्न। याकूब ने बैरशेबा छोड़कर हारान के लिए प्रस्थान किया। वह किसी तीर्थ स्थान जा पहुंचा और वहां रात भर ठहर गया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। उसने वहां पड़े हुए पत्थरों में से एक को उठा लिया और उसे तकिया बनाकर वहां सो गया। उसने यह स्वप्न देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को
यह धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेटे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के रजकणों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूरब, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंश द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम में से जो कहा उसे पूरा ना कर दूं। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। वह भयभीत हो गया और बोला, यह स्थान कितना श्रद्धाजनक! यह तो ईश्वर का निवास है, यह स्वर्ग का द्वार है। उसने बहुत सवेरे उठकर सिरहाने का वह पत्थर उठाया, उसे स्मारक के रूप में खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल उधेड़ दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। वह नगर पहले लूज कहलाता था। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। गगन निरंतर गाता है महिमा गरिमा कीर्तन गा। आत्मा के स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। त्योहार ईसा मसीहा का आज मनाते इस वेदी पर। हल्लेलुया हल्लेलुया सब मिले गाते हल्लेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। आत्मा के स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। अनादिकाल से आनंद काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फलों का संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहें। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ध्यान पूर्वक सुनिए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 10 से 17 तक। हे प्रभु आशीर्वाद दे। मसीह आपको आशीर्वाद दे।
ईश्वर से प्राप्त अनुग्रह के अनुसार मैंने कुशल वास्तुपति की तरह नींव डाली है, कोई दूसरा ही इसके ऊपर भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक को सावधान रहना है कि वह किस तरह निर्माण करता है। जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, और वह नींव है ईसा मसीह। यदि इस नींव पर लोग निर्माण के कार्य में सोना, चांदी, रत्न, लकड़ी, घास अथवा भूसा काम में लाएंगे तो हर एक का काम प्रकट किया जाएगा। प्रभु का दिन जो आग के साथ आएगा उसे प्रकट कर देगा, और उस आग द्वारा हर एक के काम की परीक्षा ली जाएगी। जिसका भवन कायम रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, जिसका भवन जल जाएगा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा। फिर भी वह बच जाएगा, जैसे कोई आग पार कर बच जाता है। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। आवो गाए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आओ गाए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। गूंज रही है मेरे मन में अच्छी सच्ची बात निरंतर, अब राजा के सम्मुख गाके मधुर भजन सा उसको सुनाओ। आओ गाए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आओ गाए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम खड़े हों और ध्यान पूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। शांति आप लोगों के साथ हो। आपके और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छी बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका वैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालों लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेतों में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी वैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय में लुनने वालों से कहूंगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो।
हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। आदरणीय फादर पौली पय्यपल्ली, हमारे गोरखपुर धर्म प्रांत का प्रोटो सेंजलूस, आदरणीय फादर साबू कंडंगटील, हमारे लिटिल फ्लावर प्रोविंस गोरखपुर नेपाल का प्रोविंशियल सुपीरियर, आदरणीय फादर सजी पॉल सेंट बेसिल पल्ली का पल्ली पुरोहित, आदरणीय फादर फ्रांसिस किलिवल्लिकल प्रोविंशियल काउंसिलर, आदरणीय फादर आल्बिन वर्गगालायल रेक्टर, यहाँ उपस्थित आदरणीय फादरगण, लिटिल फ्लावर मिशन हरेया, लिटिल फ्लावर मिशन कलवारी, सेंट जोसेफ मिशन परशुरामपुर एवं वाल्टरगंज से यहाँ उपस्थित सारे फादरगण, सिस्टर्स, क्रिस मैम, मेरे प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, सबको जय यीशु। आज का दिन संत बेसिल पारिश के इतिहास में अत्यंत आनंद और धन्यवाद का एक दिन है। बस्ती जिले के प्रथम पारिश की घोषणा हमारे लिए, विशेषकर गोरखपुर डायसिस के लिए एक अनोखा और अनुग्रह से परिपूर्ण है। चैट जीपीटी में मैंने देखा, अगर सेंट बेसिल के नाम में कोई एक कैथोलिक चर्च हमारे इंडिया में है, चैट जीपीटी के अनुसार कोई चर्च कैथोलिक चर्च के अंतर्गत नहीं है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स में है, ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर है। इसलिए भारत में संत बेसिल के नाम पर समर्पित पहला पारिश चर्च है बस्ती के, आज घोषित किया सेंट बेसिल पारिश चर्च। हमें तो पता है संत बेसिल, जिन्हें ईस्टर्न मोनास्टिक लाइफ का पिता है रिलीजियस लाइफ में, और संत बेसिल ने विशेष रूप से आर्यन हेरेसी के विरुद्ध कैथोलिक विश्वास की दृढ़ता से रक्षा की। इसलिए संत बेसिल को चर्च फादर्स में एक मानते हैं। उनकी प्रेरणा इस कलीसिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी शक्तिशाली मध्यस्थता हम सभी पर बनी रहे, ताकि हम अपने विश्वास में अटल बने रहें और पूरे हृदय से मसीह का अनुसरण करते हुए जीवन व्यतीत करें। मैं यहाँ उपस्थित लिटिल फ्लावर मिशन हरेया, लिटिल फ्लावर मिशन कलवारी, सेंट जोसेफ मिशन परशुरामपुर और हमारे वाल्टरगंज से पधारे आदरणीय फादरगण,
आदरणीय सिस्टर्स और संत बेसिल पैरिश के और अन्य मिशन स्टेशन से आए हुए सारे सदस्यों को अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपके लिए आज यहाँ एक पैरिश का स्थापना की। इस पुण्य दिन में आपकी उपस्थिति ने इस दिन को और आशीषमय बना दिया है। आज हम एक ऐसे जीवित कलीसिया की नींव रख रहे हैं जहां ईश्वर का वचन हमारे जीवन को दिशा देगा, संस्कारों के द्वारा हमें अनुग्रह और शक्ति मिलेगी और प्रेम, सेवा तथा विश्वास में हम सब एक परिवार के रूप में बढ़ते रहेंगे। आज से बस्ती सेंट बेसिल चर्च का मेंबर्स है आप सभी। जरूर लिटिल फ्लावर मिशन हरेया, कलवारी और परशुरामपुर और वाल्टरगंज में जो मिसा बलिदान अभी चल रहे हैं वह तो होगा, जरूर तो होगा, लेकिन आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ इधर से ही होगा। इसके लिए हमारे लिए एक नया पुरोहित है पारिश पृष्ठ के रूप में आदरणीय फादर सजी पोल। आज हम विशेष रूप से धन्यवाद से भरे हृदय के साथ उन सभी लोगों को भी याद करते हैं जिनके परिश्रम और समर्पण से बस्ती मिशन आज इस अवस्था तक पहुंचा है। विशेष रूप से हम पूर्व बिशप डोमिनिक और बिशप थॉमस का धन्यवाद करते हैं जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से इस मिशन में प्रगति हुई और आगे बढ़ा। आज मैं विशेष रूप से आदरणीय फादर प्रोविंशियल फादर साबू को और उनके प्रोविंशियल काउंसिलर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आदरणीय फादर प्रोविंशियल और प्रोविंशियल काउंसिलर्स ने इस बस्ती पैरिश को हमारे गोरखपुर डायसिस के अंतर्गत एक पैरिश चर्च डिक्लेयर करने के लिए हमें अनुमति दिया। यह CST लिटिल फ्लावर प्रोविंस का एक रिलीजियस हाउस है, एक आश्रम है, एक आश्रम चर्च है। फिर भी इस चर्च को गोरखपुर धर्म प्रांत के लिए और यहाँ धर्म प्रांत के अंतर्गत जो विश्वासी गण इस बस्ती डिस्ट्रिक्ट में अभी आते हैं उनके लिए एक पैरिश चर्च के लिए डिक्लेयर करने के लिए और एक पैरिश प्रीस्ट को अपॉइंटमेंट करने के लिए आदरणीय फादर प्रोविंशियल और प्रोविंशियल काउंसिलर्स हमें अनुमति दिया। इसके लिए आदरणीय फादर साबू, मैं तहे दिल से गोरखपुर धर्म प्रांत की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही हम सभी फादर्स के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने 1980 से इस मिशन की उन्नति के लिए प्रयत्न किया है, कार्य किया है। ये हमारे धर्म प्रांत के स्थापना के पहले 1980 में CST फादर्स हम काम करने शुरू किया, इस स्टेशन का प्रारंभ हुआ। तब से इस स्टेशन में अभी 46 साल तो हो गया। 46 इयर्स में इस स्टेशन के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए जो फादरगण इधर काम सेवा किया है उन सबको मैं तहे दिल से यहाँ याद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। बस्ती पैरिश में प्रेम, समर्पण और सहयोग की भावना के साथ
कार्य करने वाले हमारे डोमिनिकन सिस्टर्स को भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद अदा करता हूं। आज इस अवसर पर विशेष रूप से मैं आदरणीय फादर सज्जी पोल को बधाई देता हूं। आदरणीय फादर जी, आप पिछले मेरे ख्याल से पिछले 5 साल से यहाँ बस्ती में सेंट बेसिल स्कूल का प्रिंसिपल के रूप में सेवा करते हैं और पिछले 1 साल से यहाँ का प्रीस्ट इन चार्ज के रूप में आप सेवा कर रहे हैं। लेकिन आपके पुरोगदायी जिंदगी में आज आपका एक नया अपॉइंटमेंट है, बिशप से मिला है, ये पारिश प्रीस्ट का अपॉइंटमेंट है। आपने वह स्वीकार किया और गोरखपुर धर्म प्रांत के लिए अपने विश्वासी गण के सेवा में आप तहे दिल से हमेशा व्यस्त है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आई विश यू हार्टी कंग्रेचुलेशंस एंड गॉड्स अबंडेंट ब्लेसिंग्स इन योर प्रीस्टली मिनिस्ट्री। थैंक यू। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या है ऐसा एक पारिश का जरूरत, इसके बारे में हमारे पारिश डिक्री के अंतर्गत हमने सुना है। जो 7 सिविल डिस्ट्रिक्ट में अभी तक और गोरखपुर धर्म प्रांत थे, अभी 36 सिविल डिस्ट्रिक्ट में उसका एक्सटेंशन हुआ है। यह धर्म प्रांत का धर्माध्यक्ष का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारे इस 36 सिविल डिस्ट्रिक्ट में अपने कलीसिया के सिरो मलबार कलीसिया के आध्यात्मिक कार्यों को देखभाल करना और इस सिविल डिस्ट्रिक्ट में जिला के अंतर्गत जो भी कार्य प्रभु मसीह का वचन फैलाने के लिए कार्य कर सकते हैं, उसमें व्यस्त होना और मिशन में हमेशा ध्यान रखना। इसलिए पहली बार हमारे इस सिविल डिस्ट्रिक्ट में एक नया पारिश का शुरुआत हुआ है। आगे 25 और 50 साल के अंतर्गत और पारिश हमारे इस सिविल डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे। हमारे डायसिस में अभी 7 नया पारिश का डिक्लेरेशन आजकल चल रहे हैं। आज 5वां पारिश है सेंट बेसिल चर्च बस्ती। आप लोगों का मेरा अनुरोध है, आपके पारिश प्रीस्ट के साथ अपने विश्वास में दृढ़ होने के लिए कोशिश करें और पारिश प्रीस्ट के साथ एक परिवार के साथ प्रार्थना करें, एक दूसरों को सहायता दे और एक दूसरों को शक्ति मिलने के लिए अनुग्रह मिलने के लिए प्रार्थना करें। संत पौलुस कहते हैं, मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 6 में हम सुनते हैं, संत पौलुस का यह शब्द, यह वचन हमें याद दिलाता है कि कलीसिया केवल ईंटों और दीवारों का भवन नहीं, बल्कि विश्वास, प्रार्थना और प्रेम से निर्मित एक जीवित समुदाय है। मुझे तो पता नहीं है इधर इस मिशन किसने शुरू किया, लेकिन मेरे ख्याल से आदरणीय फादर सेबास्टियन तुंडतिल इधर काफी सालों से सेवा किया। आदरणीय फादर फ्रांसिस काफी सालों इधर सेवा किया है। हमारे दिशा सोशल वर्क में फादर जॉन और कई सिस्टर लोग इधर सेवा किया है। इसलिए संत पौलुस का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। एक ने इधर
स्टेशन शुरू किया। दूसरे और कई फादर लोग इस स्टेशन के उन्नति के लिए मेहनत किया और आप लोगों के लिए पुरोगदाई जिंदगी पुरोगदाई सेवा किया, मिसा चढ़ाया, प्रार्थना किया, संस्कारों को आपको प्रदान किया। ऐसे इस मिशन अभी एक पारिश के रूप में, एक पारिश के तरह प्रगति हुआ है। इसलिए ये ईश्वर का कृपा है, मसीह का अनुग्रह है। इस मसीह का अनुग्रह में हम हमेशा ध्यान रखना है। आज के सुसमाचार में गेहूं और जंगली घास की दृष्टांत हमें धैर्य और एकता का संदेश देती है। प्रभु कहते हैं दोनों को कटनी तक साथ बढ़ने दो। हम एक दूसरे की कमजोरियों के बावजूद प्रेम और धैर्य के साथ साथ चले। ऐसा है, हमारे फादर लोगों के साथ भी गलतियां तो हो जाएगा, आप लोगों के साथ भी गलतियां और कमजोरियां हो जाएगा, लेकिन हम तो एक साथ एक परिवार के रूप में पारिश आगे लेके जाना है। मुझे तो पता है इधर कई लोग कुछ साल से इधर से निकल जाएंगे, इधर से वापस जाएंगे, लेकिन ये पारिश, ये सेंट बेसिल पारिश इधर रहेगा हमारे धर्म प्रांत के अंतर्गत। जब तक ये पारिश इधर रहेगा तब तक जो भी इस कलीसिया का मेंबर्स हैं, इस कलीसिया के अंतर्गत आते हैं, एक साथ प्रेम भाव से, भाईचारा से हम इस पारिश की उन्नति के लिए सेवा करना है, काम करना है। संत पौलुस भी हमें याद दिलाता है कि हम ईश्वर के सहकर्म है। इसलिए यह पारिश भाईचारा, सहयोग और मेल मिलाप का केंद्र बने। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रभु यीशु का वचन है। यहाँ बस्ती में हम एक छोटी सी कलीसिया के रूप में यहाँ उपस्थित है। हम हमारे अंतर्गत, हमारे पारिश के अंतर्गत जो कुछ हमने करते हैं वह सब प्रभु यीशु मसीह का साक्ष्य देना है। हमारा भाईचारा, प्रेम भाव, एकता, विश्वास, प्रार्थना, सब कुछ दूसरों के लिए एक साक्ष्य बनना है। इसके लिए आइए हम प्रार्थना करें, साथ ही साथ एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हम विशेष रूप से आप सबको पुनः अभिनंदन करता हूँ और विशेष रूप से आदरणीय फादर प्रोविंशियल, आदरणीय फादर सजी पोल और सारे इधर यहाँ सेवा करते हैं सारे फादर लोगों को धन्यवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। सबको जय यीशु। हम सब आनंद और उत्साह से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह, तू मार्ग, सत्य और जीवन है। तेरे पुनरुत्थान में हम आनंदित होते हैं। हमें अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य और मृत्यु से जीवन की ओर ले चल। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह, तूने अपने पुनरुत्थान द्वारा क्रूस को उपहास के चिन्ह से महिमा का प्रतीक बनाकर महिमान्वित किया। हमें अपने शरीर को उसकी समस्त बुरी वासनाओं सहित क्रूसित करने और स्वयं को अर्पित कर अनंत जीवन प्राप्त करने में सहायता कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह, गरीबी से संघर्षरत, रोगों से पीड़ित और सत्य के कारण अत्याचार सहन कर रहे लोगों का स्मरण कर। तेरे महिमान्वय पुनरुत्थान
और स्वर्ग के आवरणीय आनंद का स्मरण करते हुए उन्हें उनकी दौड़ पूर्ण करने और उनके विश्वास का संरक्षण करने में सहायता कर, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह, पवित्र बलिदान में उत्साह पूर्वक भाग लेने में और तेरे शरीर और रक्त को, जो हमारे जीवन और पुनरुत्थान के कारण है, योग्यता पूर्वक ग्रहण करने में हमारी सहायता कर, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के पिता और मुखिया संत पापा लियो के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप राफेल के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष कुरियाकोस के लिए, हमारे पिता और धर्माध्यक्ष मैथ्यू के लिए तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे प्रभु ईसा मसीह, अपनी कृपा से हमारा उद्धार कर, अपनी शांति और प्रशांति हमें प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हम सब अपने आप को और एक दूसरे को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे मसीह, तूने मृत्यु पर विजय पाए, तेरी कलीसिया में सदैव उपस्थित रहकर उसे नवजीवन से परिपूरित कर, पास्का रहस्यों में भाग लेने के लिए हमें सक्षम बना और तेरे पुनरुत्थान की महिमा के योग्य बना। तेरी शांति और प्रशांति हमारे परिवार, समुदाय और समस्त मानव जाति में निवास करें। ये सबके प्रभु सर्वथा। आमीन। हे प्रभु आशीर्वाद दे। हम सब खड़े हो और हस्तारोपण के लिए सिर झुकाएं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया तेरी है। वह तेरे मसीह के कठोर दुख भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेवड़ है। पवित्र आत्मा तेरी महिमामय ईश्वरत्व के साथ एक तत्व है। उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिताई की श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। हे प्रभु, हमारे स्वभाव की तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपनी सार्वत्रिक कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया है। हे प्रभु, तू अपनी दया हम में पूर्ण कर दे। हमारे हाथों द्वारा अपने वरदानों की वर्षा कर। तेरी दिव्य कृपा हम पर और इन चुने हुए भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु ईश्वर, हमें यह वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कर्मों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा ही स्तुति, सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करने के लिए हमें योग्य बना। हे सबके प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वथा। जो स्नान संस्कार स्वीकार कर चुके हैं और जीवन की मुद्रा से अंकित है, वे ही भक्ति और ध्यान से पवित्र रहस्यों में भाग ले। मेरी शरण नगा प्रभु सगलेश्वर में, मेरी शरण नगा प्रभु सगलेश्वर में। पावन रिक्त शरीर ईसा मसीहा के, पूजित वेदी पर अर्पित होते हैं। प्रेमादर से हम सम्मुख आएंगे, दूत गणों के संग मिलजुल गाएंगे। पावन पावन है सगलेश्वर
प्रार्थना करिए, शांति हमारे साथ रहे। पिता पुत्र पवित्रात्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। यीशु माता मरियम और धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनादिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरित उसके बंधुओं विनती करिए शांति विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थोमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग शक्तिमान प्रभु साध हमारे। राजाधिराज साध हमारे। प्रभु सगलेश्वर साध हमारे। याकूब का ईश सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृदग प्यारे सोते रहे इस आशा में। प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को उपवास प्रार्थना पश्चाताप से। यीशु मसीह और परम पिता की पवित्र आत्मा की महिमा गाए। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य और अदृश्य सृष्टि का करता है। एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारे मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा। पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पुन्तुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रस्तुत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित
और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपने स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने प्रादि धर्माध्यक्षों, मुख्य धर्माध्यक्षों, महाधर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म सेवकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता, भाई बहन तथा पुत्र पुत्रियों के लिए हम प्रार्थना करें। सभी विश्वासी शासकों का जो प्रभु ईसा को प्रेम करते हैं और सच्चे विश्वास में इस संसार से विदा हुए सभी लोगों का हम स्मरण करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्गराज में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान हमारे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम पर बरसाए तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। पापी और दुर्बल होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे स्तुति, सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब, सदा और सर्वदा। आमीन। शांति आप लोगों के साथ हो। आपके और आपकी आत्मा के साथ भी। भाइयों और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। धर्माध्यक्ष प्रार्थना करने लगे हैं कि उनकी मध्यस्थता द्वारा शांति का विस्तार हो। हम सिर झुकाकर सर्वोच्च में मन लगाए, मौन रहे और एकाग्र होकर अपने हृदय में भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्य आत्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सगलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख कियो। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान। न्याय
है पावन यह बलिदान, न्यायोचित है पावन यह बलिदान। ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रजा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों स्वर्गदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्ग की सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबिन तथा दिव्य सराबी से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुतिगान, एक दूजे से पुकार गाते। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु सगलेश्वर, तेरी महिमा गरिमा निरंतर पूजित है प्रभु अवनी अंबर। तेरी हो प्रभु जय जयकार, होसाना होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से परम धाम में। होसाना दाऊद सुत को होसाना, उसकी हरदम जय जय गा। होसाना होसाना। हे प्रभु, आशीर्वाद दे भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा प्रभु मसीह आपकी प्रार्थना सुने और यह बलिदान स्वीकार करे। वह आपकी पुरोहिताई को स्वर्ग राज्य में महिमान्वित करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और उसकी कृपा और करुणा की आशा में प्रतीक्षारत विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसमें वह प्रसन्न हो जाए। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे प्रिय पुत्र की आज्ञा अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्रित होकर मुक्ति के स्मारक ये रहस्य तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के शिष्यानुसार हम उसके दुखों की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उस रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उससे थोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के क्षमा के लिए ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो।
और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादान अनुग्रहों के प्रति हम तुझे स्तुति, सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। मन ही मन प्रार्थना करे, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, सार्वत्रिक कलीसिया के पिता और मुखिया संत पापालियों के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्च बिशप राफेल के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष कुरियाकोस के लिए, हमारे पिता और धर्माध्यक्ष माथ्यू के लिए, पुरोहितों, धर्म सेवकों, समर्पितों में लोक धर्मी प्रेरितों के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धर्मी और संत पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दीन, रोगी और पीड़ित इन सबके लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सदारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और हमारे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हैं, ये प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु ईश्वर, तेरे शिक्षानुसार हम इस शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी उपवासी को जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। और हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा पावन स्नान संस्कार के जीवन और जीवन प्रदाय चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। ईश्वर हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह की प्राण पीड़ा, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान की महान अद्भुत पवित्र जीवनदाय और दिव्य रहस्यों की हम स्तुति करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उन्हें आनंद पूर्वक मनाते हैं। हम मौन रहकर श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो, वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इससे अनुग्रहित और पवित्र करें। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृतकों की स्मृतान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अवर्णनीय मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तेरे शाश्वत पवित्र और जीवनदायी नाम को स्तुति, सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। ईश्वर मेरे पापों की कलम से मुझे शुद्ध कर दो,
हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरी उदार कृपा हमें इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य है, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य है। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, और तेरी सदा आराधना हो। यह जीवन और जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाला नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाला मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से उतरी जीवन रोटी, मैं हो जीवन दायक रोटी। प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण ही करते। वे सब मुझ में सर्वदा रहते, अनश्वर जीवन वे ही पाते। अपने मुक्ति दाता ने शिष्य गणों से ऐसा ही कहा। उसकी इच्छा पे चलने वाले उसके सेवक प्रधान दूतगण केरुबिन सराफिम रहते भय में वेदी पास ही रहते। मानव पाप हटाने वाला ईश्वर सुध के पावन तन को पूज पुरोहित हाथों से अब विभाजित करते इस पावन पल में। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहचर्यता हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वथा। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम हमारे प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और हमारे भाइयों बहनों को अपराध को क्षमा करें। कि पाप तथा अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतकरण के मन मुटाव और कहल से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, यह रस हमारे शरीरों के पुनरुद्धान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु ईश्वर, तू अपनी सिंह कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर, अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुति गान कर सकें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें इस योग्य बना दे कि हमें निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सकें
और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहें कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध का पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। शांति आप लोगों के साथ हो, आपकी और आपकी आत्मा के साथ भी। पवित्र कुर्बाना पवित्र लोगों के लिए। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा महिमा हो। आमीन। जीवित ईश्वर का स्तुति गान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी कृपा करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। भाई और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्गराज में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर के पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। दिल में आओ हे प्रभु, दिल को सजाओ हे प्रभु। दिल में आओ हे प्रभु, दिल को सजाओ हे प्रभु। तू है जीवन दाता, शांति दाता। आओ प्रभु, मेरे दिल में बस जा। आओ प्रभु, मेरे दिल में बस जा।
दिल में आओ हे प्रभु, दिल को सजाओ हे प्रभु। रोटी के रूप में दिल में आकर भूख मिटा दे प्रभु। रोटी के रूप में दिल में आकर भूख मिटा दे प्रभु। भर दे प्रभु मुझ में जीवन, तू ही है जीवन का बोल। भर दे प्रभु मुझ में जीवन, तू ही है जीवन का बोल। दिल में आओ हे प्रभु, दिल को सजाओ हे प्रभु। दाक्रिस के रूप में दिल में आकर प्यास बुझा दे प्रभु। दाक्रिस के रूप में दिल में आकर प्यास बुझा दे प्रभु। भर दे प्रभु मुझ में जीवन, तू ही है जीवन का जल। भर दे प्रभु मुझ में जीवन, तू ही है जीवन का जल। दिल में आओ हे प्रभु, दिल को सजाओ हे प्रभु। तू है जीवन दाता, तू है शांति दाता। आओ प्रभु मेरे दिल में बस जा। आओ प्रभु मेरे दिल में बस जा। What was one night mission has now become a home of faith for all generations to come. For the church grows not merely by bricks and buildings, but by hearts united in faith, love, and charity. His Excellency Bishop Matthew Nellikunnail CST, Bishop of the Eparchy of Gorakhpur, Reverend Father Poli Payyapallil, Vicar General, Reverend Father Sabu Kandangattil CST, the Provincial Superior, Reverend Father Saji Paul CST, our beloved parish priest, and the Superior of the Basil Favan community, Reverend Father John Vadakkel CST, and Father Francis Kilivallikal CST, former superiors of Basil Favan, and the priest in charges of St. Basil Church, Reverend Fathers, Reverend Sisters,
members of the mission stations of Kalvari, Hareya, Parashurampur, and Waterganj, and my dear brothers and sisters in Christ Jesus. Today is truly a day of immense joy, thanksgiving, and grace for all of us, as our church is officially declared and evaluated to the status of a parish. This historic and blessed occasion fill our hearts with gratitude to God and to all those who have accompanied us on this beautiful journey of faith. First and foremost, we bow our heads in humble thanksgiving to Almighty God for His abundant blessing, loving guidance, and constant protection. I extend our heartfelt gratitude to His Excellency Mar Matthew Nellikunna LCST for graciously being with us on this solemn and joyous Eucharist celebration. Your inspiring message, fatherly presence, prayers, and blessings have made this occasion deeply meaningful and spiritually enriching for all of us. Thank you, His Excellency. I also express my sincere thanks to Reverend Father Poli Paipalli, our Vicar General, and Reverend Father Sabu Kandangattil CST, our Provincial Superior, for your esteemed presence among us today and for blessing with your encouraging words and prayers. Thank you, dear fathers. With deep gratitude and affection, I especially remember and thank Reverend Father Saji Paul CST, our beloved parish priest and the superior of Basil Favan community. Your dedication, spiritual leadership, and tireless service have been a true blessing to this community, and your prayers, sacrifice, and constant encouragement strengthen our faith and unite us, one family in Christ. We also remember and thank for the gracious presence of Father John Vadakel CST and Father Francis Kalivalikal CST, our former parish in charges, and all our fathers who have rendered their service in our mission station. For their dedication and prayers have strengthened the spiritual growth of this community. I also cherish and gratefully remember Reverend Father Agustin Tarpat CST for his prayers and support. I sincerely thanks to Reverend Father Biju Pulindanam, Reverend Father Shindo CST, and Reverend Father Albin CST for their grace, joys, and blessed presence here today. As the priest in charges of mission stations of Hareya, Parashurampur, Kalvari, and Waterganj, the presence of all other fathers from our neighboring missions stations, namely Khalilabad, Bansi, Siddharthnagar, and other doubles our joy and fills the occasion with grace and blessings. A special thanks to Father Binu, Father Sebastian, Father Boni, and Father Anish, the members of Basil Favan community, and Sister Poonam, Sister Jayanti, and Sister Anima for their tireless service. Your prayers, spiritual guidance, encouragement, and generous support has greatly contributed to growth and strengthening of our faith community. A special thanks to our Mother Vedi and Pitar Vedi. My sincere thanks also to the faithful members of the mission stations of Kalvari, Hareya, Parashurampur, and Waterganj for joining us today and sharing in the joy of this blessed occasion. I gratefully acknowledge and thank all our parishioners, choir members, altar servers, food committee members, volunteers, benefactors, and everyone who worked tirelessly behind these scenes to organize the celebration in such a beautiful and powerful manner. With gratitude, we also remember all the family and faithful members of our
church community who sacrifice prayers, generosity, and unwavering dedication over the years have laid the foundation for this great achievement. Today's joy is the fruit of your faith and commitment. As we begin this new chapter in the life of our church as a parish community, may we continue to walk together in faith, unity, love, and share for the great glory of God and the growth of His church. Once again, I thank each and every one of you for your presence, prayers, love, and support. May Almighty God bless you abundantly and reward you for your service. Thank you all. हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र दिव्य जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उनकी महिमा गाएं। ईश्वर की आवर्णीय देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। पेज नंबर 196। हे प्रभु ईश्वर, जो दिव्य रहस्य हमने ग्रहण किए हैं वे हमारे पुनरुत्थान का आश्वासन बने। तूने मानव जाति को महिमा से सुशोभित किया। स्वर्ग में समस्त धर्मियों के साथ तेरी स्तुति करने के लिए हमें योग्य बना दे। हे सबके प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। ये मसीह मानव जाति की आशा, तूने इस पवित्र बलिदान द्वारा तेरे पुनरुत्थान के रहस्यों में भाग लेने हमें योग्य बनाया। तेरे पवित्र रक्त द्वारा मुक्ति की गई कलीसिया में हम तुझे स्तुति, सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं। हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। पुनरुत्थान से प्रभुवर ने फैलाई खुशी मानव में। अपनी दुल्हा कलीसा में धन्य हो प्रभुवर सर्व सदा। आमीन। पुनरुत्थित प्रभु ईश्वर का शाश्वत है जो शांति यमन। कलीसा की तब संतान में अविरत शांति होता रहे। आमीन। विश्वास प्रेम से पूरित हो, पुनरुत्थान का साक्षी हो। ऊपर उसकी ज्योति बने, प्रभुवर आपको आशीष दे। आमीन। जीवन दाई सलीब से आप सभी जन मुद्रित हो। विपत्तियों से मोचित हो, अब सदा एवं सर्वसदा। आमीन। आमीन।
तुझे धन्य मानते हैं, तेरे लिए स्तोत्र गान। सारे संसार के हे अधिपति गुणगान तेरा करते हैं। शाश्वत बलि पिता तो ही है, करता संसार उपासना, करता संसार उपासना। ईश्वर के सारे दूतों के संग स्वर्गधाम की रखवासे, केरूबिन और सेराफिम के संग स्वर्ग संगीत गाते हैं। सेनाओं के नाम ईश्वर है पावन, पावन है नित पावन है, पावन है नित पावन है। तेरे प्रजा की रखवाली करना, आशीष बरसा तू सर्वदा। तेरी जनता का करना तो शासन, उन्नति उनको प्रदान कर। सदा हम तेरी करते हैं स्तुति, तेरे पावन नाम को भी, तेरे पावन नाम को भी। स्वर्ग के द्वार पुत्रों के लिए खोला, मृत्यु को हरा कर। ईश्वर के दाएं भाग में तू रहता है दैवी आसमां में। तू धरती पर न्याय करने को आएगा, ये विश्वास आएगा, ये विश्वास। To all the fathers to join for a group photo. नित्य पुरोहित प्रभु यीशु, तेरे पुरोहित दासों को खामियों से परे रखे, निर्मलता दे रक्षा कर। नित्य पुरोहित प्रभु यीशु, तेरे पुरोहित दासों को खामियों से परे रखे, निर्मलता दे रक्षा कर। ग्रहण कर तेरा दिव्य लहू, आदर बना रख पवित्रतम।